وادی کشمیر کی آزادی کے لیے کوشش، ایک مجاہد کی سنسنیخیز داستان آپ کے لیے پیش خدمت ہے مشن کشمیر۔ طاق میں دیا جل رہا تھا، اس کی دھندلی روشنی کوٹھڑی میں پھیلی ہوئی تھی۔ دروازہ لوہے کا تھا، اس کے کھلنے کی چرچراہٹ سنائی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اندر آنے والا کوئی سپیرا نہیں تھا، بلکہ ایک دبلی پتلی دراز قد لڑکی تھی۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ وہ دبے پاؤں چلتی میرے پاس آئی اور مجھ سے کوئی بات کیے بغیر میرے ہاتھوں کی رسیاں کھولنے لگی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس لڑکی کو میں نے کہیں پہلے بھی دیکھا ہے۔ میں نے اسے پوچھا، کیا مجھے سانپوں کے کھڈ میں پھینکنے کے لیے لے جا رہی ہو؟ لڑکی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، خاموش رہو۔ اب میں نے اس لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو جھونپڑی کے اندر بے ہوش پڑی تھی، اور بوڑھی عورت یہ کہہ کر مجھے اس کے پاس جھونپڑی میں لے آئی تھی کہ تم مسلمان ہو بیٹا، میری بیٹی کو اپنے ہاتھ سے پانی پلا دو۔ میں نے سرگوشی میں اس سے پوچھا، تم وہی جھونپڑی والی لڑکی ہو نا؟ تم نے اور تمہاری ماں نے دھوکے سے مجھے ان لوگوں کے ہاں پھنسا دیا ہے۔ میں اگر زندہ بچ گیا تو تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس دوران لڑکی میری دونوں کلائیوں کی رسیاں کھول چکی تھی۔ اس نے آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، تم اسی طرح بولتے جاؤ گے تو ضرور زندہ نہیں بچو گے۔ میں تمہیں ان لوگوں کی قید سے نکالنے آئی ہوں، زبان بند رکھو۔ میرے بدن میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی یہ لڑکی مجھے ان خونی سپیروں کی قید سے آزاد کرانے آئی تھی؟ اس نے میرے پاؤں بھی کھول دیے۔ میں چارپائی پر اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی کلائیوں کو سہلانے لگا۔ لڑکی نے مجھے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور دبے پاؤں دروازے کے پاس گئی۔ ذرا سا دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اپنی جیب ٹٹولی۔ جیب میں چوئنگم ٹیبلٹ والی ڈبی محفوظ پڑی تھی۔ اسرائیلی کے بریف کیس سے اڑائے ہوئے راکٹوں، میزائلوں اور نیوکلیئر پاور پلانٹ کے بلو پرنٹ کی نقل میں نے تہہ کر کے تعویذ میں رکھی تھی۔ وہ تعویذ بھی میرے بازو کے ساتھ اسی طرح بندھا ہوا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا، ان سپیروں نے میرے بٹوے میں سے کچھ بھی نہیں نکالا تھا۔ میں چارپائی سے اتر کر کوٹھڑی میں ٹہل کر ہاتھ پاؤں کھولنے لگا۔ میری ٹانگیں اکڑ گئی تھی۔ دروازے میں سے لڑکی اندر آئی۔ آتے ہی مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی فرشتہ میری مدد کو بھیج دیا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا دروازے سے باہر گیا۔ وہ غار میں آگے آگے جا رہی تھی۔ یہ غار کی مخالف سمت تھی۔ ایک جگہ غار میں سیڑھیاں آ گئیں۔ ہم سیڑھیاں اتر گئے۔ نیچے فضا بے حد مرطوب تھی اور عجیب سی سیلی ہوئی تھی۔ یہاں اندھیرا بھی تھا۔ لڑکی رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دو اور میرے ساتھ ساتھ چلو۔ میں نے ویسا ہی کیا۔ یہ بڑی گہری سرنگ تھی۔ قدموں کے نیچے چھوٹے چھوٹے پتھر آ رہے تھے۔ کچھ دور اندھیرے میں چلنے کے بعد چڑھائی شروع ہو گئی۔ لڑکی رک گئی۔ اس نے سرگوشی میں کہا، آگے سیڑھیاں ہیں، دیکھ کر چڑھنا۔ میں اس کے ساتھ بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ میں سیڑھیاں گنتا بھی جا رہا تھا۔ کوئی 15 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد مجھے ایسی روشنی نظر آئی جیسے رات کو تاروں بھری رات میں نیلی نیلی روشنی ہوتی ہے۔ ساتھ ہی تازہ ہوا کے جھونکے بھی آنے لگے۔ یہ رات کی نیلی نیلی روشنی اور تازہ ہوا جس سرنگ میں سے ہم گزر رہے تھے اس کے دہانے سے آ رہی تھی۔ غار کا دہانہ آیا تو ہم نکل کر جھاڑیوں کے درمیان آ گئے۔ میں کھلے آسمان کے نیچے تھا۔ تازہ سرد ہوا چل رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ میں نے لڑکی کے کاندھے پر سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ میرے آگے آگے چل رہی تھی۔ جھاڑیوں میں جھینگر بول رہے تھے۔ جب ہم قریب سے گزرتے تو جھینگروں کی آوازیں خاموش ہو جاتی۔ میں اب جنگل کی آزاد فضا میں نکل آیا تھا۔ اب ایک سپیرا تو کیا، اگر سارے سپیرے بھی مل جاتے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ میں نے لڑکی سے کہا، بہن جی تمہارا بہت شکریہ، تم مجھے قید سے چھڑا کر لے آئی ہو، بس آگے میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ لڑکی چلتے چلتے رک گئی۔ ستاروں کی مدھم روشنی میں مجھے اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں اور چہرے کے نقوش دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ اس نے کہا، جو سانپ ناگ منی کی پوجا کے وقت تمہارے اور دوسری مسلمان لڑکی کے اوپر پھینکے گئے تھے، ان کے منہ سے زہر کی تھیلیاں نکالی ہوئی تھیں، لیکن جن سانپوں کو ہمارے سپیروں نے تمہارے اور مسلمان لڑکیوں کے کپڑوں اور تمہارے جسموں کی بو سنگھا دی ہے، وہ بہت زہریلے سانپ ہیں۔ ان کے زہر ان کے منہ میں موجود ہیں۔ تم جہاں جاؤ گے یہ سانپ تمہارا پیچھا کریں گے اور تمہیں ڈس کر ہلاک کر ڈالیں گے۔ میں نے کہا، لیکن ابھی تو میرے پیچھے سانپ نہیں چھوڑے گئے، ابھی تو میں اس جنگل سے فرار ہو سکتا ہوں، آگے کسی نہ کسی بستی یا شہر میں پہنچ جاؤں گا، پھر سانپ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ لڑکی آگے چل پڑی، کہنے لگی، اس وقت رات کے 2 بج رہے ہیں، میں اسی لیے تمہیں نکال کر لے آئی ہوں۔ تھوڑی دیر میں پجاری سپیرے تمہیں کوٹھڑی سے لینے آئیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے وہ تمہاری کوٹھڑی میں پہنچ بھی چکے ہوں۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ تم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہو تو وہ پہلا کام یہ کریں گے کہ زہریلے سانپوں کی 6 جوڑیاں تمہارے پیچھے چھوڑ دیں گے۔ میں نے کہا، تم مجھے کہاں لے جا رہی ہو؟ وہاں یہ سانپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے۔ لڑکی بولی، تم خاموشی سے میرے پیچھے چلتے رہو، ان باتوں کا مجھے تم سے زیادہ علم ہے، میں اس کا بھی انتظام سوچ رکھا ہے، ساری عمر ہو گئی ہے ان خونی سپیروں میں رہتے ہوئے، میں سب گر جانتی ہوں۔ میری یہ ہمدرد لڑکی جھاڑیوں اور اونچی گھاس والے میدان میں سے گزر کر اب ایک چڑھائی چڑھ رہی تھی۔ گھاس رات کی شبنم سے بھیگ رہی تھی، جس کی وجہ سے میری پتلون کے پائنچے گیلے ہو گئے تھے۔ ٹیلے کے اوپر چٹانوں کے درمیان ایک قدرتی غار تھا۔ اس غار کے آگے نرکلوں کے اونچے اونچے جھنڈ اگے ہوئے تھے۔
उन के पीछे गार का मुंह था जिसके आगे पत्थर की सिल रखी हुई थी। उस सिल ने गार का मुंह बंद कर दिया। लड़की ने सिल एक तरफ हटा दी। तारों की रोशनी में मुझे गार में एक छोटा सा रास्ता जाता मालूम हुआ। मैंने लड़की से कहा, ये तो कोई खड्ड या खो मालूम होता है। उसने कहा, मैं पहले अंदर जाती हूँ, तुम मेरे पीछे आना। वो झुककर बल के घुटनों के बल होकर गार के तंग धाने में से अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे अंदर घुस गया। अंदर एक तरफ से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हम उठकर खड़े हो गए। रोशनी में देखा कि गार के अंदर का हिस्सा थोड़ा कुशादा है और छत भी ऊंची है। लड़की मुझे कुछ आगे ले गई। दीवार में एक शगाफ था। रोशनी उस शगाफ से बाहर निकल रही थी। शगाफ के अंदर काफी खुली जगह थी जहाँ मिट्टी का एक दिया दीवार में जल रहा था। उसकी रोशनी में मुझे एक लड़की दोनों घुटने सीने से लगाए कोने में सहमी हुई बैठी दिखाई दी। मैं वहीं ठिठक गया कि ये लड़की कहाँ से आ गई। जो लड़की मुझे अपने साथ लेकर आई थी उसने कहा, ये लड़की भी मुसलमान है, हमारे आदमियों ने इसको भी कैद कर रखा है। मैं पहले इसे निकाल कर यहाँ लाई थी। मैंने कोने में बैठी हुई लड़की को दिए की रोशनी में देखा तो मैंने उसको भी पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसको मेरे बाद नाग मुनि के बुतों के सामने लाया गया था। वो मेरी तरह एक चारपाई पर बंधी हुई थी। उस पर भी मेरे साथ ही सांप छोड़े गए थे और वो दहशतज़दा होकर बार बार अपनी माँ और बहन भाइयों को और खुदा की मदद के लिए पुकार रही थी। मुसलमान लड़की मेरी तरफ डरी हुई नजरों से देख रही थी। मेरी हमदर्द कहने लगी, तुम्हें अपने साथ इस लड़की को भी निकाल कर अपने साथ ले जाना और इसे इसके माँ बाप के घर पहुंचाना होगा। हमारे सपेरे मालूम नहीं इसे कहाँ से पकड़ लाए हैं। ये किसी शहर का नाम बताती है, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। मैंने ज्यादा शहर नहीं देखे। इससे पूछो कि ये किस शहर में जाना चाहती है। मैंने लड़की से पूछा, बहन तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? लड़की मिडिल क्लास के पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक रखती थी और खुद भी पढ़ी लिखी थी। ये बाद में मालूम हुआ वो 10वीं जमात में पढ़ती थी। उसने बताया कि उसका नाम नसीम बानो है। वो बनारस शहर की रहने वाली है। उसके बाप का घर शहर के जुनूब मशरकी इलाके की एक बस्ती में दरियाए गंगा के किनारे था। उसके बाप की शहर में मुनियारी और स्कूल की किताबों की दुकान थी। कहने लगी, हमारा स्कूल दरिया की घाट के करीब है। एक हफ्ता हुआ मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक सपेरा सांपों का तमाशा दिखा रहा था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तू इम्तिहान में अव्वल आएगी, तेरा माथा बता रहा है। मुझे अपने घर ले जाकर भोजन करा। मैं तुझे सांप का मोहरा दूंगा। जिस घर में मोहरा हो वहाँ सांप बिच्छू कभी नहीं आता। अगर किसी को सांप काट ले तो ये मोहरा सांप काटे के जख्म पर रख देना, वो आदमी बच जाएगा। हमारे घर में दरिया के करीब होने की वजह से सांप बिच्छू बरसात में निकल आते थे। मैंने कहा, चलो बाबा मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। मैं उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक गली में से गुजरी तो सपेरे ने खुदा जाने किस तरह रुमाल मेरे मुंह पर रखा और मुझे कोई होश न रहा। मेरी हमदर्द लड़की ने नसीम बानो की बात काटते हुए कहा, अब तुम फिक्र न करो, ये तुम्हारा मुसलमान भाई बंद है। इसे भी तुम्हारी तरह कुछ पिलाकर बेहोश करके यहाँ लाया गया था। ये तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम इस लड़की के पास यहाँ बैठो, मैं ये मालूम करके आती हूँ कि हमारे आदमी तुम्हारी तलाश में क्या कुछ कर रहे हैं और उन्होंने किस किस इलाके में जासूस सांप छोड़े हैं, क्योंकि अब तक तुम दोनों के फरार का उन लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ से जाना बिल्कुल मत, मैं ज्यादा देर नहीं लगाऊंगी। जब वो जाने लगी तो मैंने सवाल किया, अगर तुम्हारे सपेरों ने हमें हलाक कर देने के लिए जासूस सांप छोड़ रखे हैं तो वो मेरे और इस लड़की नसीम बानो के कपड़ों और जिस्म की बू पर यहाँ भी आ जाएंगे। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मेरे साथ गार के मुंह तक आओ। मैं उसके साथ शगाफ में से निकल कर गार के धाने पर आ गया। उसने पत्थर की सिल परे गिरा दी। गार के धाने में से जो किसी बड़े सुराख की तरह था, ऐसी रोशनी अंदर आने लगी जैसे बाहर आसमान पर पौ फट रही हो। वो मुझे अपने साथ बाहर ले गई। बाहर आसमान पर सुबह का नूर फैल रहा था। पिछले पहर की शबनमी हवा में काफी खुनकी थी। कहने लगी, यहाँ खड़े रहो। मैं गार के धाने के उगे हुए ऊंचे ऊंचे नरकलों के पास ही खड़ा हो गया। लड़की झुककर झाड़ियों में कुछ तलाश करने लगी। वो अंधेरे में खुदा जाने क्या ढूंढ रही थी। जब 2-1 मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में कुछ पौधे थे। कहने लगी, ये बड़ी खास किस्म की जड़ी बूटियां हैं। अगर इसे कुचल कर इनके कुचले हुए डंठों को किसी तरह रगड़ कर मल दिया जाए तो उधर सांप कभी नहीं आएगा। इसकी बू से सांप इस तरह डरता है जैसे इंसान सांप से डरता है। उसने मेरे सामने डंठों को पत्थर पर रखकर दूसरे पत्थर से कुचल दिया। फिर उसके कुचले हुए डंठल और शाखें पत्थर की उस सिल पर रगड़ रगड़ कर मलने लगी जो गार के धाने पर रखा जाने वाला था। जब उसने सारी कुचली हुई जड़ी बूटी पत्थर की सिल पर अच्छी तरह मल दी तो कहने लगी, अब तुम अंदर जाकर आराम से बैठो। हमारे सपेरों ने जो सांप तुम्हारे लिए छोड़े हैं वो इस तरफ का रुख नहीं करेंगे। मैंने कहा, लेकिन उन्हें हमारी बू तो जरूर आ जाएगी। इस तरह वो गार में नहीं आएंगे, लेकिन आके बाहर बैठ जाएंगे और सपेरे समझ जाएंगे कि हम गार के अंदर हैं। लड़की कहने लगी, सांप कोई पुलिस के सिपाही नहीं है। इस जड़ी बूटी की तेज बू इस वक्त पहाड़ी के चारों तरफ 2-2 फरलांग तक फैल चुकी है। सांप इसकी बू पाकर इस पहाड़ी से दूर चले जाएंगे।
तुम बेफिक्र हो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं गार के अंदर आ गया। लड़की ने बाहर से पत्थर का सिल रख कर गार का दरवाजा बंद कर दिया। मैं गार के अंदर शगाफ में बनारस की मजलूम मुसलमान लड़की नसीम बानो के पास आकर बैठ गया। वो रो रही थी और सख्त डरी हुई थी। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि अब वो कभी अपने माँ बाप बहन भाइयों के पास जा सकेगी। मैंने उसे बहुत तसल्ली दी और कहा, तुम अपना डर खौफ दूर कर दो बहन, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे और मैं खुद तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के पास पहुँचा दूंगा। मुझे दिल्ली जाना है, मैं बनारस से होता हुआ चला जाऊंगा। मेरी बातों से उसकी काफी हिम्मत बंधी। कहने लगी, भैया इन लोगों को जरूर पुलिस के हवाले कर देना। अगर ये रहमदिल लड़की मुझे मेरी कोठरी से मेरी रस्सियां खोलकर यहाँ न लाती तो खुदा जाने मेरा क्या हाल होता। वो रोने लगी। मेरे गुम हो जाने से न जाने अम्मी अब्बू का क्या हाल होगा। मैं उसे तसल्लियां देने लगा कि खुदा पर भरोसा रखो, जिसने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से निकाल दिया है वो हमें यहाँ से भी निकाल दे। मुझे भी अपना बड़ा भाई समझो। मैं तुम्हें खुद तुम्हारी अम्मा और अब्बू के पास पहुँचाऊंगा। मैं उसका ख्याल बदलने के लिए उससे उसके स्कूल और स्कूल की सहेलियों की बातें करने लगा। कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। सपेरन लड़की अभी तक नहीं आई थी। बाहर दिन चढ़ाया होगा। अब खूनी सपेरे और उनके सांप हमारी तलाश में सारे जंगल में निकल आए होंगे। किसी वक्त ख्याल आता कि ये सांपों का इंसानी कपड़ों और जिस्म की बू पर आ जाना बेकार की बातें हैं। मैं उस लड़की को लेकर यहाँ से निकल जाता हूँ। सपेरे के पास कोई असलहा वगैरह तो है नहीं कि घात लगाकर हम पर फायर कर देंगे। कोई सामने आ गया तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मेरे हाथों से जिंदा बच जाए। फिर ये सोचकर बैठा रहा कि खुदा जाने इसमें कोई सच्चाई ही हो। सांप हमारी बू पाकर जंगल में हमें डस न ले। ये गरीब लड़की कहीं वैसे ही डर कर शोर न मचा दे। बेहतर यही है कि सपेरन लड़की का इंतजार कर लिया जाए। वहाँ वक्त गुजरने का एहसास नहीं हो रहा था। मेरा ख्याल है कोई आधा घंटा गुजर गया था कि सपेरन लड़की गार में दाखिल हुई। उसने हमें बताया कि सपेरे सख्त गुस्से में हैं और सारे जंगल में हमें तलाश करते फिर रहे हैं। उन्होंने तमाम जहरीले सांप जिनको उन्होंने पहले रोज ही तुम्हारे जिस्म की और कपड़े सुंघा दिए थे तुम्हारे पीछे छोड़ दिए हैं। मगर तुम फिक्र न करो, इस पहाड़ी की तरफ कोई सांप नहीं आ रहा। मैंने जहाँ आते हुए सांपों के एक जोड़े को अपनी आंखों से देखा था। उनका मुंह इस पहाड़ी की तरफ था। इन्हें तुम दोनों की बू आ रही थी, लेकिन जैसे ही जड़ी बूटी की तेज बू हवा के झोंके के साथ उनके जिस्म से टकराई, इस तरह घबरा कर एकदम पीछे को भागे जैसे आग लग गई हो। मैंने उसे पूछा, अब हमें कितनी देर और यहाँ रहना होगा। सपेरन लड़की अपने साथ उबली हुई शकरकंदी और एक कटोरे में गुड़ का शरबत ले आई थी। उसने शकरकंदी केले के पत्तों पर डालकर हमारे आगे रख दी। कहने लगी, दिन के उजाले में तुम्हारा यहाँ से निकलना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें आज का दिन इसी जगह बैठकर गुजारना होगा। रात को मैं तुम्हें खुद साथ लेकर इस जंगल से बाहर ले जाऊंगी। शकरकंदी बड़ी मीठी थी। मुझे भूख भी लगी हुई थी। मैंने और नसीम बानो ने शकरकंदी खाकर पेट की आग बुझाई, गुड़ का शरबत पिया, जिस्म में ताजगी आ गई। सपेरन लड़की ये कहकर चली गई कि मैं ज्यादा देर नहीं ठहर सकती, दोपहर के बाद दोबारा आऊंगी। उसके जाने के बाद नसीम बानो से बातें करने लगा। गार के अंदर सर्दी नहीं थी, मगर सर्दियों का मौसम था, इस वजह से गर्मी भी महसूस नहीं हो रही थी। उस मजलूम लड़की का खौफ अब दूर हो चुका था। एक दो बार वो मेरी किसी बात पर हंसी भी थी। दोपहर के वक्त सपेरन हमारे लिए खिचड़ी ले आई जिसमें आम का अचार मिला हुआ था। वो पानी भी लाई थी। हमने बड़े शौक से खाना खाया। मैंने उसे कहा कि बाहर दिन कितना गुजर गया है। उसने बताया कि दोपहर हो चुकी है और हमारे आदमी तुम्हें तलाश करते करते थक गए हैं। सारे सांप भी नाकाम वापस आ गए हैं। मैंने कहा, तो फिर अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। वो कहने लगी, जब तक बाहर अंधेरा ना हो जाए यहाँ से निकलने का नाम भी ना लेना, नहीं तो तुम्हारे साथ मैं भी मारी जाऊंगी। मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुमको हमारी मदद का ख्याल कैसे आया। सपेरन लड़की खामोश हो गई, फिर बोली, ये मैं नहीं जानती। ऐसा लगता है कि भगवान ने मेरे दिल में ख्याल डाला कि मैं तुम्हारी मदद करूं। मैंने पूछा, वो औरत तुम्हारी माता जी थी क्या? सपेरन लड़की कहने लगी, नहीं, वो मेरी असली माँ नहीं है। उसने मुझे यहाँ पाला है। मैं खुद नहीं जानती कि मेरी माँ कौन थी। एक बूढ़े सपेरे ने बताया था कि तुम एक जंगल में झाड़ियों के पास पड़ी रो रही थी। तुम्हारी उम्र उस वक्त 6-7 माह की होगी कि हम तुम्हें वहां से उठा कर ले आए। भगवान जाने मेरी माता कौन थी और वो मुझे रोता हुआ झाड़ियों के पास क्यों छोड़ गई। शायद डाकुओं ने मेरी माता को अगवा किया होगा और मैं उसकी गोद में होंगी। डाकू मुझे वहीं फेंक कर मेरी माता को उठा कर ले गए होंगे। मैंने जब होश संभाला तो मैं इन सपेरों में थी। तब से लेकर आज तक मैं इनमें रह रही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मैंने कहा कि तुम हमें लेकर यहाँ से किस तरफ जाओगी और जिस तरफ तुम हमें लेकर जाओगी वहाँ से कोई शहर, रेलवे स्टेशन करीब होगा? उसने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, ये सब कुछ तुम्हें खुद मालूम करना होगा। मैं तुम्हें खतरनाक जंगल से बाहर निकाल कर वापस आ जाऊंगी। अब मैं जाती हूँ, मेरा ज्यादा देर तक ठहरना ठीक नहीं। और वो चली गई। उसके बाद हमारे लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो गया। बस बातें कर रहे थे, नींद भी नहीं आ रही थी। बनारस की लड़की नसीम बानो ने मुझसे मेरे बारे में पूछा कि मैं कौन हूँ और इनके जाल में कैसे फंस गया। मैंने उसे अपने बारे में सिर्फ इतना ही बताया कि बम्बई से दिल्ली जा रहा था, सैलाब की वजह से बांडा शहर में रुक गया।
सोचा जबलपुर से होता हुआ कानपुर के रास्ते दिल्ली चला जाऊंगा। ट्रेन में बैठा, आगे जाकर रेलवे लाइन बह जाने की वजह से ट्रेन खड़ी हो गई। मैं यूं ही सैर करने स्टेशन से निकल आया और इस सपेरन लड़की की माँ मुझे धोखे से बेहोश करके यहाँ ले आई। यूं ही बातें करते वक्त गुजरता चला गया। थोड़ी देर बाद मैं उठकर दिए की बत्ती ऊंची कर देता। आखिर सपेरन लड़की आ गई। उसके हाथ में पोटली थी। कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए इसमें खिचड़ी डालकर लाई हूँ, रास्ते में जब भूख लगे तो खा लेना। मैंने उससे कहा कि अगर रात हो गई है तो हमें यहाँ से चल पड़ना चाहिए। सपेरन लड़की ने कहा, अभी सूरज गुरूब हुए थोड़ी देर ही हुई है, थोड़ा वक्त और बैठ जाओ, जंगल में पूरी तरह से अंधेरा हो लेने दो। उसने बताया कि सपेरे कल किसी नई मुसलमान लड़की और नए मुसलमान लड़के को पकड़ने के लिए निकलेंगे। मैंने उससे पूछा, ये सिर्फ मुसलमान लड़के और लड़कियों को क्यों पकड़ते हैं? वो कहने लगी, इनके यहाँ ये एक पुरानी रस्म चली आ रही है। ये हर साल की पहली अमावस की रात को नागमुनि देवता के आगे एक मुसलमान लड़की और एक मुसलमान लड़के को कुर्बान करते हैं। इससे पहले ये कई मुसलमान लड़कियों और लड़कों को नागमुनि देवता के आगे हलाक कर चुके हैं। तुम खुशकिस्मत हो और पहले मुसलमान हो कि यहाँ से बचकर जा रहे हो। मैंने दिल में सोचा कि इन लोगों को यहाँ जिंदा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। मैंने सपेरे लड़की से कहा कि रात को ये सारे खूनी सपेरे कहाँ सोते हैं? उसने कहा कि जिस गार में तुम कैद थे और जहाँ नागमुनि देवता का बड़ा बुत है, सारे सपेरे उसी गार में अपनी अपनी कोठरियों में सोते हैं। मैंने उसी वक्त उन लोगों को नागमुनि देवता समेत बम से उड़ाने का फैसला कर लिया। टाइम बम मेरे पास मौजूद थे, मगर मैं खुद वहां जाकर उन्हें नहीं लगा सकता था। उस गार को तबाह करने के लिए मेरे च्युइंगम वाले 2 टाइम बम ही काफी थे। मेरा जहन तेजी से टाइम बमों को सांप के बुत वाले गार में लगाने की तरकीबें सोचने लगा। सपेरन लड़की रात होने का इंतजार करते हुए हमारे पास ही बैठी दूसरी लड़की से बातें कर रही थी और उसे हौसला दे रही थी। मैं सोच रहा था कि टाइम बम कैसे लगाया जाए। मैं खुद इन बमों को लगाने गार के अंदर नहीं जा सकता था। मुझे सपेरों की मौजूदगी से कोई खतरा नहीं था। इन सब से मैं अकेला कमांडो ही निपट सकता था। मुझे खतरा उनके जहरीले सांपों से था। अगर वो मुझ पर सांप छोड़ देते हैं तो मेरा जिंदा बच जाना मुश्किल था। सपेरन लड़की के हाथ अगर मैं बम की टिक्कियां देकर कहूं कि ये वापस जाकर नागमुनि के गार में चिपका देना, तो वो जरूर पूछेगी कि ये क्या है और तुम इसे वहां क्यों चिपकाना चाहते हो। मेरे पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। काफी सोच विचार के बाद जब मेरे जहन में खूनी सपेरों के गार धमाके से उड़ा देने की कोई तरकीब न आई तो मैंने अपना इरादा बदल दिया। सपेरन लड़की को वक्त का बराबर एहसास था। वो ये कहकर उठ खड़ी हुई कि बाहर अंधेरा हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। जाने से पहले उसने हम दोनों की हिदायत की कि उसके पीछे पीछे कम से कम 5 कदम का फासला रखकर चलें। गार से निकलने के बाद और नसीम बानो सपेरन लड़की के दरमियान 5 कदम का फासला रखकर चलने लगा। रात का अंधेरा छा चुका था। जैसा कि आपको मालूम है कि मुझे रात के अंधेरे में भी थोड़ा बहुत नजर आता रहता है। सपेरन लड़की हमारे आगे आगे जुनूब की तरफ जा रही थी। वो एक तरफ नीचे को उतर गई, हम भी उसके पीछे पीछे उतर गए। उस खाई की दीवारें 3 अतराफ में काफी ऊंची थीं। सिर्फ एक रास्ता बना हुआ था। सपेरन लड़की हमें लेकर खाई से भी निकल आई। इसी तरह खेतों, घास के मैदानों, खड्डों, खाइयों और दरख्तों के घने झुंडों में से गुजरते हुए हम एक खुली जगह पर आ गए। आसमान बड़ा खुला खुला था, सितारे चमक रहे थे। यहाँ आकर घने दरख्तों के झुंड खत्म हो जाते थे। सपेरन लड़की रुक गई। जब मैं और नसीम बानो चलते चलते उसके करीब आए तो वो कहने लगी, यहाँ सपेरों के जंगल की सरहद खत्म होती है, आगे तुम खुद ही जाओगे और खुद अपना रास्ता तलाश करोगे। मैंने उसे कहा, क्या आगे कोई शहर है? वो कहने लगी, मैं बहुत देर हुई एक बार माता के साथ उस तरफ गई थी। मुझे याद है यहाँ से आगे हमने बैलगाड़ी में सफर किया था, फिर मैंने रेलगाड़ी देखी थी। उसके आगे एक गाँव आया था। मेरी माता उस गाँव में अपने किसी रिश्तेदार से मिलने गई थी। वही गांव कहीं आगे आता है। मैंने सपेरन लड़की का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, तुमने हमारे साथ जिस हमदर्दी का सलूक किया है उसके लिए मैं और मेरी मुंह बोली बहन नसीम बानो हम दोनों तुम्हारा शुक्रिया अदा करते हैं। सपेरन लड़की ने आसमान की तरफ देखा। अब तुम वक्त खराब न करो, मुझे वापस भी जाना है। पीछे किसी को शक पड़ गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जाओ। इतना कहकर सपेरन वापस मुड़ी और तेज तेज कदमों से चलती जहाँ दरख्तों के झुंड से आई थी वहीं गायब हो गई। अब मेरा और बनारस की लड़की नसीम बानो का सफर शुरू हो गया। उस बेचारी ने कहा इस किस्म के सफर किए थे। सितारों की थोड़ी थोड़ी रोशनी और रास्ते में कभी कोई खाई आ जाती, कभी कोई बरसाती नाले से गुजरना पड़ता, कभी ऊंची ऊंची झाड़ियां शुरू हो जाती। लड़की थोड़ी दूर चलती तो डर कर बैठ जाती कि अंधेरे में उसे कोई सांप न काट ले। मैं उसे हौसला देता, उसकी हिम्मत बंधाता और ये खौफ भी दिलाता कि हो सकता है खूनी सपेरे हमारे ताक़ुब में लगे हों। वो जल्दी से उठकर दोबारा चलने शुरू कर देती। अभी तक मुझे वहाँ कोई पगडंडी वगैरह नहीं मिली थी जिससे ये पता चलता कि आगे कोई गांव वगैरह है। जिस तरह सपेरन लड़की ने हमें चलने को कहा था हम उसी रुख पर आहिस्ता आहिस्ता चले जा रहे थे। काफी देर तक चलने के बाद झाड़ियां और ऊंची ऊंची घास खत्म हो गई तो मुझे खेतों में खड़ी फसल नजर आई। मेरी निगाहें अंधेरे में भी खेतों को पहचान लेती थी।
اس کا مجھے کافی تجربہ ہو چکا تھا۔ ہم ذرا قریب ہو گئے تو واقعی وہ جوار یا باجرے کی فصل تھی۔ میں نے لڑکی سے کہا آگے کوئی نہ کوئی گاؤں ضرور ہوگا، وہاں سے کوئی پکی سڑک شہر کو بھی جاتی ہوگی۔ وہ سانس لے کر بولی بھائی ہم کس طرف جا رہے ہیں، کہیں ہم راستہ تو نہیں بھول گئے؟ لیکن ہم راستہ نہیں بھولے تھے۔ آگے ایک گاؤں آ گیا جس کے مکانوں پر رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس مکانوں کے خاکے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ یہ سارا میدانی علاقہ تھا، پہاڑیاں ٹیلے پیچھے رہ گئے تھے، پگڈنڈی چوڑے کچے راستے میں تبدیل ہو گئی تھی۔ ہم گاؤں کے پہلو سے گزرے تو دور بجلی کے کھمبوں کی روشنی نظر آئی۔ میں نے لڑکی سے کہا وہ دیکھو یہ پکی سڑک کی روشنیاں ہیں، یہ سڑک ضرور کسی شہر کو جاتی ہے۔ کون سا شہر آئے گا، بنارس تو بہت دور ہے۔ ہم کسی نہ کسی طرح چلتے چلتے پکی سڑک پر آ گئے۔ سڑک بالکل خالی تھی۔ ہم اس کے کنارے ایک جگہ بیٹھ کر تھکان اتارنے لگے۔ لڑکی بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ ہم دیر تک وہاں بیٹھے رہے۔ اس دوران وہاں کوئی گاڑی یا ٹرک نہ گزرا۔ میں بھی نا امید ہو گیا تھا تو سوچا کہ مشرق کی طرف چل پڑتے ہیں، آگے کوئی نہ کوئی قصبہ یا گاؤں ضرور آئے گا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی موٹر گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ میں وہیں رک گیا۔ پیچھے دیکھا کسی گاڑی کی روشنی سڑک پر پڑ رہی تھی۔ گاڑی ابھی دور تھی کہ سڑک کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا اور گاڑی کو روکنے کے لیے دونوں بازو ہلانے لگا۔ گاڑی قریب آ کر رک گئی۔ اب لڑکی نسیم بانو بھی میرے پاس آ گئی تھی۔ یہ گاڑی فوجی ٹرک تھا۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ مجھ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی۔ فوجی ٹرک میرے لیے خطرہ بن سکتا تھا، لیکن اس وقت میں نے پرواہ نہ کی۔ ٹرک میں سے سکھ فوجی باہر نکلا اور پنجابی نما اردو میں بولا کون ہو تم، ادھر کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ یہ میری بہن ہے، ہمارے گاؤں میں سیلاب آ گیا تھا، جان بچا کر بھاگے ہیں، ماتا پتا سے بچھڑ گئے اور ادھر آ نکلے ہیں، ہمیں آگے کسی گاؤں میں پہنچا دیجیے۔ سکھ فوجی بولا آگے گاؤں نہیں ہے، ریوا ہے، چلو بیٹھو ٹرک میں۔ ہم جلدی سے دوڑ کر ٹرک کے پیچھے بیٹھ گئے۔ ٹرک بالکل خالی تھا۔ میں نے لڑکی سے پوچھا یہ ریوا کوئی قصبہ ہی ہو سکتا ہے، وہاں کوئی ریلوے اسٹیشن بھی ہو؟ لڑکی کہنے لگی ریوا تو شہر ہے، میری امی جی نے ایک بار اس شہر کا ذکر کیا تھا۔ یہ اور بھی اچھی بات تھی۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد فوجی ٹرک نے ہمیں ریوا پہنچا دیا۔ یہ واقعی ایک شہر تھا، اگرچہ چھوٹا شہر تھا۔ رات کے وقت بازار سنسان پڑے تھے۔ میں نے سکھ فوجی سے کہا سردار جی ہمیں اسٹیشن پر اتار دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ سکھ فوجی نے ہمیں اسٹیشن پر پہنچا دیا۔ اسٹیشن کے گیٹ کے اوپر انگریزی اور اردو میں موٹے لفظ میں ریوا لکھا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ اسٹیشن پر چند ایک مسافر ہی ڈیوڑی میں پڑے تھے۔ ہم بھی وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ میں نے لڑکی سے کہا تم یہاں بیٹھو، میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ یہاں سے بنارس کس طرف ہے اور کوئی گاڑی یہاں سے بنارس جاتی ہے یا نہیں۔ مجھے ایک قلی مل گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بنارس کو جانے والی گاڑی کس وقت جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہاں سے کوئی گاڑی بنارس نہیں جائے گی، 1 گھنٹے کے بعد ایک گاڑی آئے گی، وہ تمہیں مرزا پور پہنچا دے گی، مرزا پور سے بنارس کے لیے دوسری گاڑی پکڑ لینا۔ میں نے واپس آ کر مرزا پور کے 2 ٹکٹ لے لیے۔ 1 گھنٹے بعد واقعی ایک ٹرین آ گئی۔ میں اور نسیم بانو ٹرین میں سوار ہو گئے۔ اس گاڑی نے دوسرے دن صبح صبح ہمیں مرزا پور پہنچا دیا۔ مرزا پور پہنچ کر پتا چلا کہ بنارس وہاں سے تھوڑی دور ہی ہے۔ یہ علاقہ میرے لیے اجنبی علاقہ تھا۔ بہرحال مرزا پور ہمیں ایک گاڑی کچھ دیر بعد مل گئی جس میں بیٹھ کر ہم بنارس کی طرف چل پڑے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے۔